Good morning, dear students. Once again, welcome in DP class. Today we will discuss the chapter Working of Institution. Lesson 4 of DP class 9. Working of Institution. Firstly, we will see the introduction. It means the chapter discuss about the working of institution within a democracy, यानी कि within a democracy how the institution works, and we will understand how the major decisions are taken and implemented, यानी कि in the democracy how the decisions are taken and how they implemented, यानी कि practically how it is possible, and how if there is implemented, if there is having any dispute, तो then how these dispute resolved का मतलब कैसे उनको solve किया जाता है. We also discuss the key role played by the three institution, यानी कि in the decision making process three institution playing the main important role: legislature, legislative, executives and judiciary. We can say the three organs of the government also, यानी कि these are the three institutions, these are playing the important role in a democracy. So now we will discuss the chapter working of institution. Firstly we will see how is a major policy decisions taken in a government, यानी कि in the government how these policies, यानी कि how these decisions are taken and how they are implemented. So dear student, first, because I cannot write all the, when you will open your book you will see that paragraph office memorandum is the given. So what do you mean by the office memorandum we will see, and how that issued by the government, यानी कि what were the matter is there. So I hope you will see from here. Clear? So it means on August 13, 1919, the government of India issued an order and it was called an office memorandum. What is the meaning of office memorandum? का मतलब क्या होता है? Explain the policy or decisions of the government issued by an appropriate authority, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, डिसीजंस है, उनके ऊपर कैसे डिसीजन लेती है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम. तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर ऑन अगस्त 30, 1919. It means like all government orders it has a number and it is by that OM मतलब office memorandum number also given 36012/3190 dated 13th August 1919. The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. It was quite short, barely one page. In the book when you will see that office memorandum show only one page. This means the government issued hundreds of orders every day on different matters. Or what was written in that office memorandum? Those passed by those ordered by the government is जो पास किया गया था 13 अगस्त 1919 को, जो ऑफिस मेमोरेंडम, उसके अंदर क्या मेन इश्यू था, व्हाट वाज द टॉपिक गिवन. दिस ऑर्डर अनाउंस ए मेजर पॉलिसी डिसीजन. इट इज सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि जो 20% वैकेंसीज हैं ऑफ ऑल द सिविल सर्विसेज, ऑफ द सिविल सर्विसेज पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द SEBC, यानी कि किसके लिए रिजर्व रहेंगी 27% सीट्स, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. और बिफोर 13th अगस्त 1919 these seats were reserved only for the SC and ST. The benefits of job reservation was still then available only to scheduled castes and scheduled tribes. Now a new third category, का क्या नाम दे दिया इन्होंने, SEBC. पहले क्या था, only two categories were the reserved, SC and ST. They will get the government job under that quota. Now the third category came out. What is the name of that third category? SEBC, socially educationally backward class. Or how much percentage of reservation given? 27%. It means only persons who belongs to backward caste were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for these. Only how much percentage of people can get job? SEBC only 27%. और 27 में भी वो कौन से लेंगे, जो रियली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया कि हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन, कि जो पॉलिसी को डिसीजन कैसे लिए जाते हैं. तो सबसे पहले कोई भी डिसीजन बनता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट उसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम इशू करती है, उसके लिए एक ऑर्डर निकालती है.
तो ये आज का हमारा क्या टॉपिक है, ऑफिस मेमोरेंडम। क्या टॉपिक था, जो SEBC है उनको कितना % रिजर्वेशन देना है गवर्नमेंट जॉब में, सिविल सर्विसेज में 27%। बिफोर 13th August 1919 who was getting that benefit only SC and ST. Now the third category also emerged. What is the name? We can say the backward class also, SEBC. Now we will see कि the decisions makers. So then who will take the decisions here? President. We know very well president is the head of the state. Head of the state मतलब president is the head of the country and highest formal authority in the country. यानी कि सबसे ऊपर हम किसको मानते हैं अपनी कंट्री में, प्रेसिडेंट को. आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स, यानी कि हु एक्सरसाइज, हु जो भी गवर्नमेंटल पावर है वो कौन इंजॉय करता है, कौन किसके पास पावर है, उससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग. थर्ड पार्लियामेंट. यू नो वेरी वेल पार्लियामेंट इज ऑल्सो हैविंग द टू हाउसेज, लोक सभा एंड राज्यसभा. लोक सभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस, राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस. राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द house of the people because here all the MLAs directly elected by the people, or Rajya Sabha is called the Council of States. Now Lok Sabha, Prime Minister must have the support of majority of the Lok Sabha members. यानी कि प्राइम मिनिस्टर को किसका मेंबर होना जरूरी है मेजोरिटी में आने के लिए, लोक सभा का मेंबर. तो यानी कि हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन पार्लियामेंट, 2 हाउसेज, लोक सभा एंड राज्य. तो इट मीन्स दीज आर द 3 पार्ट, those who are taking the decisions, president, prime ministers and parliament. Now we will see process of formulation and implementation of the OM. What is the meaning OM here? Office memorandum. यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम का मीनिंग क्या है, द पॉलिसी और डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इश्यूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. और इसमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन थी जो इसको इश्यू करने वाली थी, पर्सनल डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. नाउ हाउ दैट जो 27% जो रिजर्वेशन की बात हुई उसके लिए क्या अपॉइंट किया गया, तो फॉर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. यानी कि जो 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो थर्ड कैटेगरी थी SEBC लोगों को, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. क्या अपॉइंट किया इसके लिए, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. और इन विच ईयर 1979. एंड हु वाज द हेड हियर, हेडेड बाय, हेड कौन थे इसका, BP मंडल. और दैट सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन पॉपुलरली नोन एज द मंडल कमीशन. और किस नाम से और जाना जाता है, मंडल कमीशन. आई रिपीट, ऑफिस मेमोरेंडम आपको क्लियर हो गया क्या मीनिंग है इसका, पॉलिसी जो डिसीजंस लिए जाते हैं. और ऊपर से हमने जो ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू किया हुआ था 13th अगस्त 1990 को जो बनकर तैयार हुआ, तो क्या इसके लिए अपॉइंट किया गया, इसको देखने के लिए इसका सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. और इन विच ईयर 1979. इसका हेड कौन बना उसमें, BP मंडल. और दैट सेकंड बैकवर्ड क्लास पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन ऑल्सो. इसका क्या मेन क्राइटेरिया था, टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द SEBC इन इंडिया. पहले तो डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई है कि रियली कितने % लोग यहाँ पर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आते हैं. फिर रिकमेंडेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशंस हियर, सजेशंस, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. यानी कि उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम क्या सजेशन, क्या स्टेप्स उठाएं कि और उनके अंदर इंप्रूवमेंट आए, डेवलपमेंट आए उनके अंदर, एडवांसमेंट. तो फॉर दैट कमीशन गेव द रिपोर्ट इन विच ईयर 1980. यानी कि मंडल कमीशन गेव द रिपोर्ट इन विच ईयर 1980. 1979 में तो कमीशन अपॉइंट हुआ एंड दैट कमीशन गेव द रिपोर्ट इन विच ईयर 1980. विच रिकमेंडेशंस, किस सजेशन के साथ, रिकमेंडेशंस वाज 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब. इन्होंने क्या सजेशन दिया कि जो 27% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, फॉर किसको मिलना चाहिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए. एंड दैट इशू, दैट टॉपिक डिस्कस इन द पार्लियामेंट ऑल्सो. For many years, many parliamentarians and many MLAs, many parties kept demanding implementation of the report. हर पार्लियामेंट्रियंस और जो भी गवर्नमेंट आती रही या पार्टीज आती रही इसके अंदर, वो रिकमेंड करती रही, डिमांड करती रही कि जो ये रिपोर्ट है इसको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट की, यानी कि इसको प्रैक्टिकली
लागू किया जाए, अप्लीकेबल किया जाए इसको। तो इट मीन वीपी सिंह बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर इन 1989। वीपी सिंह बिलोंग्स टू विच पार्टी? जनता दल। यानी कि 1989 लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड एंड जनता दल गोट द मेजोरिटी एंड आफ्टर दैट दे अपॉइंटेड द वीपी सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि वीपी सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1989। इन्होंने कहा कि इफ वी विल गेट द मेजोरिटी तो इट मीन्स वी विल प्रैक्टिकली अप्लीकेबल दैट रिकमेंडेशंस। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर में क्या कहा ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस, उन्होंने अपने क्या संबोधित किया टू द पार्लियामेंट, अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, क्या मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस, यानी कि मंडल कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशंस की गई हैं उनको प्रैक्टिकली क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उसको हम लागू कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस हियर इन दैट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कि हाउ द इंस्टीट्यूशन वर्क्स इन ए डेमोक्रेसी, और मेनली 3 इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग, legislative, legislatures, legislative, executives and judiciary, and how if they are having any disputes related any particular any policies and decisions, so then who will solve here. And after that we have discussed how is a major policy decision, यानी कि government ordered an issue that is called the office memorandum, and that what was the main issue कि कितना परसेंट 27% रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन? 27% रिजर्वेशन शुड बी देयर, और फॉर दैट पर्पज देन हु विल टेक द डिसीजंस? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट। एंड आफ्टर दैट दे फॉर दैट द रिजर्वेशन should be given or not, for that purpose they have appointed one committee, that is the given the second backward class commission, or in which year it was appointed? 1979. It was headed by BP Mandal, or that is popularly known as the Mandal commission. That Mandal gave report to in which year? 1980. Recommendation steps to be taken for their advancement. तो यानी कि how much percentage reservation should be given to the, or before 13th August 1919 only which group enjoyed all the benefits in the government job? Only SC and ST. After that third category also emerged, that is called the SEBC. On 6th August 1919 the Union Cabinet, यानी कि the Union Government took a formal decisions to implement the recommendations, यानी कि वीपी सिंह जो गवर्नमेंट बनी थी, वीपी सिंह के नेतृत्व में, लीडरशिप में जनता दल पार्टी की उस समय, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? 6 अगस्त 1919 द यूनियन कैबिनेट टूक ए फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस, यानी कि जो 27% का जो रिजर्वेशन है, जो सजेशंस आए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इनकी प्रैक्टिकली लागू करवाया जाए। तो द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम हुआ द प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजंस थ्रू ए स्टेटमेंट, यानी कि he informed to the parliament about the decisions through a statement in both the houses of parliament. Both the houses of parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha. The decisions of the cabinet sent to the, यानी कि जो डिसीजन लिया कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने, then the decision sent to the department of, और कौन से डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर इशू किया था? पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट सेंट टू द, जो यूनियन कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया sent to the Department of Personnel and Training. An officer signed the order on behalf, यानी कि जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स, they have signed the order on behalf of the, किस behalf पर उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिया? of the union government, on the behalf of the union government. This was how, जो हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो ऑफिस मेमोरेंडम था, जो था 36012/31/90 was born on अगस्त 13th 1990. नाउ क्लियर कि कैसे एक डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया गया, प्रैक्टिकली रूप में लागू किया गया, और किस किस प्रोसेस से उसको निकलना पड़ा। अब नाउ दैट इज द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिसीजंस टेकन। ये डिसीजन तो ले लिया कि ऑफिस मेमोरेंडम पास हो गया, यूनियन कैबिनेट ने पास कर दिया, देन सेंड टू द डिपार्टमेंट आल्सो पर्सनल एंड ट्रेनिंग, देन आफ्टर मैथ ऑफ डिसीजंस, यानी कि व्हाट हैपेंड? Hot debate started. Now the people giving the arguments against that. Newspapers, magazines were full of different views and opinions on these issues. यानी कि all the newspapers
even magazines were full of different views, यानी कि they filled with the different views and ideas, and for that purpose widespread protest, यानी कि widespread ना all over the part of India, the word started protest, यानी कि people have started the revolt against that. They have opposed, those who oppose the decisions, यानी कि those who were against that ideas, they have filed a number of cases in the court, यानी कि what they have done, those who oppose these ideas, what they have done, the decisions of file of a number of case in the court, उन्होंने अपना फाइल बनाकर कहाँ का डाल दिया, केस कोर्ट के अंदर डाल दिया. इनका मेन एम क्या था, why they have done here, they appeal to the court to declare the order invalid and stop its recommendations. उनका मतलब ये था कि जो ये डिसीजन लिया गया है, जो डिसीजन है इसको क्या कर दिया जाए, इनवैलिड, और किसको स्टॉप कर दिया जाए, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसको लागू करवाया है, कि बोन हुआ है, इसको बंद कर दिया जाए, उसको वहीं रुकवा दिया जाए. तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दीज केसेस टुगेदर, और दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये केस किस नाम से जाने गए, इंदिरा साहनी, यानी कि जितनी भी कोर्ट नंबर ऑफ पीपल लोगों ने फाइल किया था कोर्ट में वो एक तरफ हो गया, और किसके अगेंस्ट किया था उन्होंने, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स. उन्होंने यूनियन कैबिनेट पर्सनल डिपार्टमेंट के आर्ग्यूमेंट्स को सुना, और दूसरी तरफ जो लोगों ने इसके खिलाफ केस किया था, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट को सुना. और हाउ मेनी जजेस वर इन्वॉल्व हियर, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस इन्वॉल्व थे इसके अंदर, 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स. Now the Supreme Court declared the order was valid in 1992. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो ये डिसीजन है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये क्या है, वैलिड है, उचित है, बट गेव सम सजेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट टू मॉडिफाई का मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है. द ऑर्डर बाय एक्सक्लूडिंग वेल टू डू पीपल, एक्सक्लूडिंग मतलब किनको बाहर करना है, जो वेल्दी पीपल हैं, जो कैपेबल है, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है. पीपल अमंग बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि जो लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, जो ऑलरेडी मतलब वेल्दी पीपल है, उनको इससे बाहर निकालना है. इस चीज में बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. वैसे उन्होंने इस डिसीजन को क्या किया कि दैट इज द वैलिड, कि जो 27% रिजर्वेशन है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पीपल है, उनको मिलना ही चाहिए. एंड आफ्टर दैट accordingly another office memorandum on September 8, 1993 was issued, यानी कि 8 सितंबर 1993 को ये मेमोरेंडम फिर इशू किया गया. एंड hence this is how the disputes were resolved, यानी कि अब डिस्प्यूट्स का जो भी था वो उसके ऊपर क्या हो गया, खत्म हो गया. तो अभी हमने दिया कि कैसे कैबिनेट डिसीजन लेती है प्रॉपर तरीके से, कौन कौन से इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट. नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, व्हाई इट इज नेसेसरी. देयर आर मैनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन गवर्निंग ए कंट्री, यानी कि इफ वी आर रनिंग आवर कंट्री smoothly and properly, so it means for that purpose we are doing many types of activities. For example, ensuring security of the citizens, that is the first priority, कि all citizens are safe or not in our country. ensuring security यानी कि सभी को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना. Second, providing facilities of education and health, यानी कि providing facilities of education and health, ताकि सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, अच्छी मिले. ये कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विल लुक आफ्टर. नाउ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, नाउ व्हाट दे आर डूइंग द अदर वर्क, they are collecting all the taxes, and after that they are spending on defense development programs and for the administrative purpose also. यानी कि for the defense purpose they are spending some money, for some money they are spending on the development programs, and some money they were spending on administrative purposes. Formulation and implementation of several welfare schemes, यानी कि all the welfare schemes will also run by the political institution. So to attend to all these tasks, यानी कि to fulfill all these work, several arrangements known as, इन सभी arrangements को हम किस नाम से जानते हैं, who is doing all the activities, institutions are made in a democracy. That's why institution is necessary in a democratic form of
government, because if there is no institution, then how we will fulfill all these tasks, and how we will complete all these works. Now the constitution lays down some basic rules on the powers and functions of each institution, and which institutions use which type of powers and which type of functions. Already all the things mentioned in the constitution. For example, institution, prime minister and the cabinet ministers, cabinet, they which function they will do? Takes all important policy decisions, and all the important policy decisions will be taken by the prime minister and the cabinet. Second, civil servants. What is the duty of the civil servant? Which functions will performed by the civil servants? Implementing the decisions taken, यानी those decisions will take prime minister and the cabinet. Then who will implement? Civil servants. जो डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को, उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिविल सर्वेंट्स की. जैसे हमने देखा ऑफिस मेमोरेंडम था, उसमें क्या क्या प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर ने उसको पास किया, देन सेंड टू द सिविल सर्वेंट, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसके पास भेजा, फिर उसने उस ऑफिस मेमोरेंडम को क्या करवाया? इम्प्लीमेंट करवाया. इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन, जो डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है या यूनियन कैबिनेट ने जो लिया है. आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद हमने देखा कि कितने डिस्प्यूट्स अराइजेज हुए, जो इंदिरा साहनी वर्सेस केस इंडियन यूनियन वर्सेस के बीच में हुआ, उसको सोल्व किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया. जो डिसीजन था उसको क्या बताया? वैलिड है, पर उस वैलिड डिसीजन में भी उन्होंने क्या सजेशन दिया कि वी शुड गिव सम चेंजेस, यानी कि एक्सक्लूडेड करना है वेल टू डू पर्सन, जो वेल्दी रिच पर्सन है उनको उससे बाहर करना है. बस ये थोड़ा सा उसके अंदर रेक्टिफाई करना है, मॉडिफाई करना है उस चीज को में. तो देन हु विल डिस्प्यूट्स रीसोल्यूशन, यानी कि जो भी हमारी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, इफ एनी डिस्प्यूट इज देयर, तो देन हु विल सोल्व? सुप्रीम कोर्ट. तो क्लियर? प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स व्हाट दे आर डूइंग? टेक्स ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, एंड सिविल सर्वेंट्स व्हाट दे आर डूइंग? इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस टेकन. एंड व्हाट इज द ड्यूटी और फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? डिस्प्यूट resolution. Now we will discuss why do we need a parliament. Parliament. What major bodies constitute the parliament? The parliament constitutes the president and the two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. It means parliament किससे मिलकर बनी हुई है? President and plus two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. And first, that is the first question arises कि why do we need a parliament? Why do we need a parliament? And which are the two houses of parliament? Lok Sabha and Rajya Sabha. In detail we will discuss in the next paragraph. Lok Sabha and Rajya Sabha. तो फर्स्टली यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द किससे मिलकर बने? प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज, लोक सभा एंड राज्य सभा. व्हाट इज द डेफिनेशन? नेशनल असेंबली, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोज लीडर्स वी आर choosing or they are forming here the national assembly. So what is the definition of parliament? National assembly of elected representatives is called the parliament. At state level it is called legislative assembly. National level पर हम इसको क्या बोलेंगे? Parliament that is elected by the representatives. At the state level it is called legislative assembly. Exercises political authority on the behalf of the people, यानी कि who is having all the powers in a democracy? People. People are choosing their representatives or their representatives doing all, they are doing all the activities in the parliament, MPs. तो यानी कि exercises political authority. Political authority किसके behalf पर वो really enjoy करते हैं? On the behalf of the people. Now why do we need a parliament? Firstly we will see why do we need a parliament, यानी कि functions of parliament कि what are the functions of the parliament या why we are necessary, why do we need a parliament. Parliament is the final authority in making laws in any country. हमने last paragraph में देखा था जो रिजर्वेशन बिल बना 27% SEBC यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो मिलना चाहिए, कहाँ पर डिस्कशन हुआ? फाइनल पार्लियामेंट में. तो यानी कि पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री एंड पार्लियामेंट हैज हैविंग द पावर इट कैन चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज. इफ पार्लियामेंट इज थिंकिंग कि सम लॉज बिकेम आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब ओल्ड फैशन,
and they can change the existing laws and abolish them, and sometimes assembly इसको finish भी कर सकती है, और make new laws, उसकी जगह क्या बना सकती है, new laws, नए कानून. Parliament exercise control over those who run the government, यानी कि those political party run the government, या जो who form the government, then who control parliament. तो parliament exercises control over those who run the government. No decisions can be taken without the support of the parliament. ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के मन में जो आए कि हम जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं, नहीं, मेजोरिटी में होंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन लाने से पहले उसको कहाँ पर डिस्कस करना होगा, पार्लियामेंट के थ्रू. तो पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर दोज, किसके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को भी चलाती है. नो डिसीजंस कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस. पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द मनी मैटर्स, यानी कि कंट्री का जो भी मनी मैटर रिलेटेड है वो सारा किसके कंट्रोल में है, पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट कंट्रोल्स द मनी मैटर इश्यूज ऑल्सो. And parliament is the highest form of discussion and debate. How can we say that parliament is the highest form of discussion and debate on public issues and national policy in any country? If we want to discuss anything regarding country's national policy या any public issues, यानी कि for the welfare of the public, तो firstly where they will discuss all the issues in the parliament. So that's why Parliament is called the highest form of discussion and debate, where they are discussing each and every point related to the public issues, ये लोगों से related हो, and national policy या कोई country के लिए कोई policy बनानी उसके regarding. तो these are the four main functions. यानी कि Parliament is the final authority for making laws. It can change in the existing laws, abolish them or make new laws. एंड पार्लियामेंट कंट्रोल्स, यानी कि एक्सरसाइजेज कंट्रोल किसके ऊपर करती है, एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि विदाउट नो डिसीजंस कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अगर कुछ भी करना है तो हु विल गिव द परमिशन, पार्लियामेंट विल गिव द सपोर्ट. एंड हु कंट्रोल द मनी मैटर्स ऑल्सो कंट्रोल द पार्लियामेंट. एंड पार्लियामेंट इज द हाइएस्ट डिबेट या हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स, यानी कि ऑल द थिंग्स डिस्कशन हियर. Now we will discuss about the two houses of the parliament. Two houses of parliament. Mainly parliaments are divided into two parts. We can say that chambers or houses. Mostly in our country we call houses. It means two houses of parliament. के क्या कौन से two houses है, लोक सभा and राज्य सभा. And president also a part of the parliament, यानी कि parliament comprises of, but president is not a member of lok sabha, either lok sabha or neither lok sabha nor राज्य सभा. part of the parliament क्या कहना चाह रहे हैं, president of India part of the parliament का part है, but not the member of the parliament. not the member of the parliament का मतलब neither lok sabha member nor राज्य सभा. all the laws made in the houses come into force, यानी कि if we are making any laws in our country, then after that how they will become, houses come into force only after they receive the assent of the president, यानी कि who will give the permission last में, किसके परमिशन से होगा, किसकी रजामंदी से बाद में कानून बनेगा, प्रेसिडेंट जब अपनी लास्ट मोहर स्टैंप लगाएगा उसके ऊपर. नाउ वी विल डिस्कस द लोक सभा एंड द राज्य सभा. लोक सभा इज कॉल्ड द लोअर चैम्बर, या वी कैन से दैट द हाउस ऑफ द पीपल, and Rajya Sabha is called the upper chamber. We can another name of the Rajya Sabha, Council of States. Now total number of members in the Lok Sabha, maximum how can, what is the total stand, maximum कितनी हो सकती है लोक सभा की, 552, but at present we are having the 545 members, and among them 543 members are elected through the state and the union territories, and 2 members are elected या nominated by the president. and among 543 530 members, यानी कि लोक सभा के जो 530 members हैं वो कहाँ से कौन उनको चूज करते हैं, स्टेट, यानी कि 28 स्टेट्स चूज करके भेजेंगे, और 13 members कहाँ से आएंगे चूज होकर, यूनियन टेरिटरीज. and 2 members are nominated या elected by the president, और then who, एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन मतलब बेसिकली दोज हु केम फ्रॉम
यूरोपियन कंट्रीज यानी कि स्पेशली फ्रॉम द ब्रिटेन, जो हमारे यहाँ पर कंट्री में जो अब रह गए उनको हमने 2 सीटें दी हुई है, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियन। तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ? 545। इन राज्यसभा मैक्सिमम हाउ मेनी मेंबर्स? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, बट एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर देयर? 245। 233 ये कहाँ से इलेक्ट होके गए हैं? स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर से, और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें भी समझने की कोशिश कीजिए, या टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं इसमें? 250, बट एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर हियर? 245। 245 में से भी 233 इनडायरेक्टली कौन उनको चूज करके भेज रहा है? स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स। अभी एक्सप्लेन करेंगे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहे हैं यहाँ पर, और उनमें से 245 में से 233 यानी कि स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स विल चूज इनडायरेक्टली, और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? 12 मेंबर्स कौन? जो एक्सपर्ट हों किसी फील्ड में, क्रिकेट में, म्यूजिक में, डांस में, या किन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए कोई अच्छा काम किया, तो ऐसे 12 मेंबर्स को चूज करके उनको नॉमिनेट करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट को। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा? 2 मेंबर्स, और इन द राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? 12 मेंबर्स। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोकसभा की? 552, बट नाउ एट प्रेजेंट हाउ मेनी? 545। 545 में से भी क्या है? 543 मेंबर्स स्टेट, और कौन चूज करेंगे? यूनियन टेरिटरीज। 543 में से भी 530 मेंबर्स आर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द स्टेट, एंड 13 representatives chosen by the union territories, or 2 members are nominated by the president. Clear? Now why we are saying कि Lok Sabha is called the house of the people? Why? Because here in the Lok Sabha representatives are directly elected by the peoples, यानी कि directly we are choosing our representatives, our MLA, members of MP, members of parliament, यानी कि directly we are electing, or in the state we are electing MLAs, members of legislative assembly, directly we are, but here why we are saying indirectly elected by the state and territorial legislatures, यानी कि जो हमने यहाँ पर MP और MLA चूज किए, MP तो आ गए लोकसभा में, जो MLAs हैं जो स्टेट में और टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स में जो स्टेट में, वो क्या करेंगे? किसको चूज करके भेज रहे हैं? किसके एमपी को? राज्यसभा के एमपी को जो चूज करके। तो इसलिए राज्यसभा के एमपी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि हमने एमएलएज को चूज किया, और एमएलएज किसको चूज करके भेज रहे हैं? राज्यसभा के एमपी के लिए, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज। क्लियर? नाउ लेंथ ऑफ द टर्म, लोकसभा कितने साल के लिए चूज किए जाते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव? 5 years, बट इन द राज्यसभा 6 years के लिए। राज्यसभा कितने टेन्योर है? क्या मैक्सिमम टर्म कितना है? 6 year, बट 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। पर इसमें से जो मेंबर रहते हैं 245 हैं, उसमें से कितने मेंबर्स? 1/3 मेंबर्स कितने साल बाद रिटायर हो जाते हैं यहाँ पर? 2 years, यानी कि 2 साल के बाद। कैन इट बी डिजोल्व और इज परमानेंट, यानी कि विच हाउस कैन बी डिजोल्व और विच हाउस इज परमानेंट? तो विच हाउस इज डिजोल्व? लोकसभा। आपने देखा होगा कि लोकसभा यानी कि आफ्टर एवरी 5 years वी आर हेल्डिंग द जनरल इलेक्शंस फॉर इलेक्टिंग द न्यू लोकसभा इलेक्शन वी आर कंडक्टिंग। और विच हाउस इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस? राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस। इट कैन नॉट बी डिजोल्व। एक हाउस को हम डिजोल्व कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, भंग, इसके 5 साल के बाद हम करवाते हैं इलेक्शंस मोस्टली। और राज्यसभा क्या है? दैट इज कॉल्ड ए परमानेंट हाउस। इसमें क्या है? 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं कितने साल के बाद? आफ्टर एवरी 2 years। एंड लोकसभा एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि किसके बिहाफ पर रियल पावर को एंजॉय करता है लोकसभा के मेंबर्स? ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। एंड व्हाट इज द फंक्शन मेनली? राज्यसभा लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। क्यों वेरियस स्टेट के इंटरेस्ट को क्यों ध्यान रखता है? क्योंकि जो MLAs हैं वो ही तो इनको इनडायरेक्टली चूज कर यहाँ भेजते हैं। तो पर्टिकुलर यानी कि लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स को ये ध्यान रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर चैम्बर एंड राज्यसभा is called the upper chamber, and Lok Sabha is called the house of the people. Why? Because it is directly elected by the people.
and Rajya Sabha is called the Council of States because here indirectly elected by the state and territorial legislatures, यानी कि जो MLAs हैं वो उनको चूज कर कर भेजते हैं इनडायरेक्टली। और इसका क्या टर्म है लोकसभा का 5 years और राज्यसभा का 6 year, बट आफ्टर एवरी 2 years, after every 2 years 1/3 members retire every 2 years, after every 2 years. And can it be dissolved? Which house can be dissolved? Lok Sabha, but Rajya Sabha is a permanent house, and they really enjoy all the power on behalf of the people. So we have discussed about the parliament में president is also important part, यानी कि parliament comprises of या constitute of the president and 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. President is not a part of the parliament, sorry, is a part of the parliament but not the member of the parliament. All the laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. Now we will discuss the which house is more powerful, Lok Sabha or Rajya Sabha. Which of the house, Lok Sabha or Rajya Sabha, is more powerful? That is the question arises कि which house is the more powerful, Lok Sabha or we can say that Rajya Sabha. It might appear that the Rajya Sabha is more powerful. Why? Because we are saying कि Rajya Sabha is called the upper chamber and Lok Sabha is called the lower chamber. So according to that, if you are thinking, so it means Rajya Sabha is more powerful. For sometimes it is called the upper chamber and Lok Sabha is called the lower chamber. But this doesn't mean that the Rajya Sabha is more powerful than लोक सभा. तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि राज्य सभा अपर चैम्बर है, लोक सभा लोअर चैम्बर है, तो राज्य सभा इज मोर पावरफुल. नो, दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्य सभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, यानी कि राज्य सभा को किसके ऊपर सम स्पेशल पावर्स मिली हुई है ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर्स, बट मोस्टली मैटर्स पर the Lok Sabha exercises supreme power. But who is having the more powerful? Lok Sabha is more powerful. So now we will see कि Lok Sabha exercises more power than Rajya Sabha, यानी कि how the Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Firstly, we will discuss the during joint session the view of the Lok Sabha is likely to prevail. Firstly, any ordinary laws needs to be passed by both the houses, यानी कि if you want to pass any ordinary bill, तो यानी कि it will be passed by both the houses, यानी कि लोक सभा and राज्य सभा. But if there is a difference between the two houses, if there is any difference between two houses, members of both the houses, so what they will do? They will sit together and the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together if they are having any disputes at particular any topic. So it means what they will do, they both the houses members will sit together in a joint session, and who will call that joint session? That joint sessions will be called by the president. The view of the Lok Sabha is likely to prevail. Why we are saying कि here in the joint session the view of the Lok Sabha is likely to prevail. Why? Because due to large number of members. We know very well in the previous paragraph we have discussed Lok Sabha is having the how many members? 545 maximum, or Rajya Sabha 245. So it means if they are having यानी कि any ordinary bill passed by both the houses, but and that particular bill they are having any disputes or differences, so what they will do? President will call a joint session. Then in joint session all the houses members will sit together and they will discuss. But whose decisions will be final? Likely to be prevail because due to large number of members, because Lok Sabha members is maximum in the strength wise. So यानी कि during joint session the view of the Lok Sabha is likely to prevail, यानी कि whose decision is the, यानी कि we can say that whose views is more powerful. So in the joint session whose views we can say that Lok Sabha is more powerful comparatively to the Rajya Sabha. Now the second point, Lok Sabha exercises more powers in money matters. We are saying any ordinary bill passed by both the houses, but money bill firstly we can only introduce in only in Lok Sabha. Then ki Lok Sabha exercises more powers in money matter. How?
once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. यानी कि if Lok Sabha is passing any money bill relating to the any money related laws passed by Lok Sabha, तो cannot be rejected by the Rajya Sabha, यानी कि राज्य सभा cannot reject it. The राज्य सभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज. अब इसको बिल को राज्य सभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, कैन डिले इट बाय 14 डेज. 14 डेज तक अपने पास रख सकती है. आफ्टर 14 डेज उसको वो बिल क्या होगा, रिटर्न करना होगा लोकसभा में. और सजेस्ट चेंजेस इन इट, और किस चीज़ के लिए सजेशन दे सकते हैं कि सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड. द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, यानी कि लोकसभा इज नॉट बाउंड कि दे लोकसभा हैव टू फॉलो और नॉट फॉलो द सजेशंस ऑफ द राज्य सभा. क्लियर. तो यानी कि इन द मनी मैटर हु इज मोर पावरफुल, लोकसभा. यानी कि बजट ऑन एनी मनी रिलेटेड लॉज पास बाय द लोकसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्य सभा. राज्य सभा कैन डिले ओनली फॉर हाउ मेनी डेज, ओनली 14 डेज. आफ्टर दैट it can suggest changes in it, and the Lok Sabha may or may not accept these changes. It depends on the Lok Sabha. Third, Lok Sabha controls the Council of Ministers and the Prime Minister. How the Lok Sabha controls the Council of Ministers and Prime Ministers, we will see now. Most importantly, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of the majority, यानी कि those who are having the majority of the members in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. यानी कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी उसी में से वो अपने एक लीडर चूज करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर. एंड आफ्टर दैट इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोक सभा मेंबर्स इज से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो आफ्टर दैट व्हाट शुड बी हैपेंड हियर, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स हैव टू क्विट, यानी कि छोड़ना पड़ेगा. तो द राज्य सभा डज नॉट हैव दिस पावर. इट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है यहाँ पर, तो इट मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग, वो मिनिस्टर के साथ साथ द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, उनको भी पूरा छोड़ना पड़ेगा. तो इट मीन्स राज्य सभा हैव नो पावर रिलेटेड टू दिस टाइप. तो इट मीन्स वी हैव डिस्कस हियर कि विच हाउस इज मोर पावरफुल. भी राज्यसभा अपर चैम्बर कहने से पावरफुल नहीं है. विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा लोअर चैम्बर कहलाता है. आफ्टर दैट इट इज मोर पावरफुल. ऑन द ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल. सेकेंड, लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, and Lok Sabha controls the Council of Ministers and the Prime Minister, and but the Rajya Sabha does not have these types of powers. So dear students, in that video we have discussed about the institutions. Why do we need the institutions? After that we have discussed about the parliament, meaning what is the meaning of parliament, which are the two houses of parliament, why do we need a parliament, and after that last topic we have discussed about the which house is more powerful. So I hope you understand in the proper way all the topics. Next rest of the topics we will cover in the next video. Thank you.